Hello and welcome everyone. And today in the ninth class, we are going to start a new chapter, and the chapter name is Physical Features of India. And in this topic, we are going to study about the physical features. First of all, we are going to know what are the physical features. The physical features होते क्या हैं? Those features which are the work of the natural factors and they modify the region, the climate of that region and the other factors, they are the physical features. In the physical features, the topography of land is very much important. तो physical feature में land की जो topography होती है, बनावट होती है, उसको determine करते हैं. And the land may be a hilly region, mountainous, desert, plains, plateau, or it may be island. Then the physical features, they are natural occurring. They are not man-made or human-made. They are been there for millions of years and they have been created by the natural process. It took them millions of years for them to be there. Then when we come to the physical features, we first of all get to the first topic, the Great Himalayas. We all know that the Himalayas, they lie to the north of our country and they are the loftiest mountain in the world. तो कहने का मतलब हिमालय जो पर्वतमाला है भारत के उत्तर की तरफ है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं या चोटियां इसी में मौजूद हैं. We all know that the Himalayas, it was created when the Gondwana land or the part of India, it collided with the Eurasian plate. तो कहने का मतलब है ये तब क्रिएट हुआ जब इंडियन भारतीय प्लेट जो थी यूरेशियन प्लेट से टकराई एंड दैट रिजल्टेड इन द फोल्डिंग ऑफ दैट रीजन एंड द डेन्यूडेशन ऑफ तेथीस. तो आज जहाँ हिमालय है पहले वहाँ तेथीस नाम का समुद्र था और जब डेन्यूडेशन हुआ तो फिल हो गया और कोलिजन से क्या हुआ कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ. हिमालय सर फोल्ड माउंटेन, हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन. फोल्ड मतलब इस तरह का. जब दो लैंडमास आपस में टकराते हैं तो टकराने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे एक लैंडमास नीचे की तरफ धंस जाता है, दूसरा ऊपर की तरफ उठ जाता है. देन द इंडियन लैंडमास इट वेंट डाउन द यूरेशियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट बिकम बल्ज्ड आउट. इन दिस वे द हिमालयस वर क्रिएटेड एंड टुडे आल्सो द हाइट ऑफ द हिमालयस इज इंक्रीजिंग. आज के दौर में भी हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ते जा रही है और ये यंग फोल्ड माउंटेन है. ये युवा पर्वत है और ये जीवंत है. मीन्स इट इज इंक्रीजिंग इन हाइट डे बाई डे ड्यू टू द कोलिशन एंड द टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट. ए लॉट ऑफ प्रेशर इज क्रिएटेड विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक. आज भी उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में भूकंप आता है. भूकंप आने का मेन वजह क्या है कि इंडियन प्लेट का टकराना यूरेशियन प्लेट से, प्रेशर क्रिएट होना और उस एनर्जी का जब रिलीज होता है तो वो अर्थक्वेक के रूप में हम लोग देख सकते हैं. इससे भारी से भारी तबाही हो चुकी है और आगे भी होने की संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं. देन द रेंजेस ऑफ द हिमालयास. हिमालयास have mainly three ranges: हिमाद्री, हिमाचल and शिवालिक. The Himadri are also called inner Himalayas, Himachal, so first of all the Himadri or the inner Himalaya. Himadri is the outermost and of the Himalayan region and it is the northernmost range of the Himalayas. This range has the loftiest peaks. ये जो रेंज है हिमाद्री का, इसमें जितने भी ऊंची चोटियां हैं, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, एवरेस्ट, सब इसी में हिमाद्री रेंज में ही आती हैं. एंड दिस रेंज ऑलमोस्ट runs from east to west about 2400 kilometers. Then we are coming to the next range or the or the lesser Himalayas or the middle Himalayas, Himachal. The Himachal Himalayas are lesser in height as compared to the Himadri. तो हिमाचल जो है ये हिमाद्री की तुलना में हाइट इसकी कम है
and this Himalayas they are having the hill station. इस हिमालय में हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा हैं and the valley of Kashmir is also located in this region of the Himalayas. The best hill station like Simla, Mussoorie, Nainital, Darjeeling, they are all located in the middle Himalayas or the Himachal. Then the last range of the Himalayas, they are the Shivaliks. The Shivaliks are lower in height and rugged. तो कहने का मतलब शिवालिक जो है उनकी हाइट भी कम है, रजेड है, मीन्स दे आर क्रिएटेड ऑफ द पेबल्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. ये जो है ये सेडिमेंट्स और पेबल्स जो है रिवर जो लाती हैं पहाड़ों से उससे बने हुए हैं. एंड द पेबल्स में बी वेरी लार्ज इन साइज ऑल्सो. देन बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स there are valleys, longitudinal valleys are there, they are called dunes like Patli Dune, Potli Dune. These are the dunes, means the valleys between the lesser Himalayas, Himachal and Shivalik. Then we are coming to the extent of the Himalayas. How we divide the Himalayas in various parts. You all know that the Himalayas are 2400 km from east to west. तो पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है हिमालय की एक्सटेंट है वो 2400 किलोमीटर है. और इंदस नदी जो है सिंधु नदी वो पश्चिमी छोर की इसकी बॉर्डर है. फ्रॉम द इंडस टू द सतलज रिवर द हिमालयास विच आर लोकेटेड दे आर कॉल्ड द पंजाब हिमालयास. तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो हिमालय का एक्सटेंट है उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं. देन फ्रॉम द सतलज रिवर टू द काली दिस हिमालय आर कॉल्ड द कुमाऊं माउंटेन्स और द कुमाऊं रेंज. देन फ्रॉम द काली रिवर टू टीस्टा these Himalayas are called the Nepal Himalayas. Then from the Teesta to Dihang river, between these they are called the Assam Himalayas. तो हिमालय पर्वतमाला को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ. जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है, इसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं. पंजाब हिमालय का एक्सटेंट क्या है? सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं. देन फ्रॉम द सतलज रिवर टू द काली रिवर, सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालयस कहते हैं. इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय आ जाएंगे. देन फ्रॉम द काली रिवर टू द तीस्ता रिवर, काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय का उसको हम लोग नेपाल हिमालयास कहते हैं. एंड फ्रॉम द तीस्ता रिवर टू दिहैंग रिवर, तीस्ता नदी से लेकर दिहैंग नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम लोग आसाम हिमालय कहते हैं. सो देयर आर 4 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालयास. देन द हिमालयास दे आल्सो एक्सटेंड टू द सदर्न डायरेक्शन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दे आर कॉल्ड पूर्वांचल. हिमालय जो दिहैंग नदी के पास से नीचे मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ उसको पूर्वांचल माउंटेन कहते हैं. पूर्वांचल माउंटेन में नागा, मीजो, पटकोई एंड खासी हिल्स आर देयर. तो पूर्वांचल रेंज में नागा, मीजो, खासी एंड मणिपुर ये हिल्स हैं वो मौजूद हैं. देन वी कैन से दैट द हिमालयास आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर 2400 kilometers. 3 ranges are there, Himadri, Himachal and Shivalik, and the loftiest peaks are there in the Himadri. The Himachal has hill stations and the Shivalik they are just pebbles and sediments and they have the forest cover. Thus we can say that the Himalayas are the water source of our country India. हिमालय जो है वाटर सोर्स हैं
all the rivers from the northern India like Ganga, Jamuna, Kali, Tista, Dihang, Brahmaputra, they all originate from the Himalayas. Thus we can say that the Himalayas, they provide water for irrigation, and for the dams are built here that make the electricity and make our life easier. Thus we can say that the Himalayas are very much helpful to us. Thank you very much for listening to me. If you have any questions or queries, you can put up, and have a good day.